After discussing Hagen and Poiseuille's equation, now today we will discuss Darcy and Weisbach equation. Okay, again this equation gives us loss of head. Okay, the previous equation, Hagen and Poiseuille's equation, was also about the head loss. Similarly, this equation also gives us the head loss. Okay, so in order to understand this equation, we first have to draw one diagram. Okay, so a diagram of a pipe is there. Okay, and that pipe is having two sections. Okay, so this is the pipe, so this is the axis of the pipe, and the pipe has section 1 and section 2. Okay, so this is section 1 and this is section 2. Okay, so at section 1 the values of area is A1, then value of pressure is small p1, then velocity is v1. Okay, and at section 2 respective values of area, pressure and velocity are A2, P2 and V2. Okay, then the length of the pipe or the sections are the two sections are, let's consider, L distance apart from each other. Okay, and if the fluid is passing or flowing in this direction, then we can denote with the help of these arrows. Okay, every fluid passing through the pipe will have some pressure. Okay, and that pressure we call it as P1. Okay, similarly this lamina or this section is also having some pressure, and that pressure is P2, that we have already told. The loss of head is because of the length of the pipe. Okay, जो कुछ भी ये पाइप का लेंथ है, उसके अंदर जो कुछ भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो कुछ भी फ्लूइड है पास हो रहा है उसके अंदर, तो वो जो फ्लूइड है at this point that fluid will have different pressure, at this point the fluid will have different pressure. Okay, and because of that only the fluid flows through this pipe. Okay, अगर से प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, अगर से ये प्रेशर डिफरेंस है तो ही पानी जो है वो फ्लो होगा. अगर से प्रेशर डिफरेंस जीरो हो गया, इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर अगर से समझो इक्वल हो गया, तो पानी जो है वो फ्लो ही नहीं होगा. बराबर है. या फिर ग्रेविटी अगर से नहीं होगा, एक ही लेवल पे हॉरिजॉन्टल पाइप हमने रख दिया, तो एनर्जी चेंज नहीं होगा. एनर्जी चेंज नहीं होगा मतलब क्या है कि प्रेशर चेंज या फिर प्रेशर हेड लॉस जो है वो कुछ भी नहीं होगा, और पानी जगह पे बैठा रहेगा एक ही जगह पे. ठीक है, पानी रहने दो या फिर कौन सा भी फ्लूइड रहने दो, it will flow because of the pressure difference, or it will flow because of the energy difference. Okay, and that energy difference or pressure difference that we want to find out using this equation, Darcy's equation. Okay, now to get this we need to apply the Bernoulli's equation at sections 1 and 2. Okay, 1 और 2 सेक्शन को हमें Bernoulli's equation अप्लाई करना है. What is the Bernoulli's equation? So Bernoulli's equation states that whatever the amount of energy at section 1 is exactly equal to the amount of energy at section 2. Correct?
जो कुछ भी एनर्जी फर्स्ट सेक्शन पे है उतना ही एनर्जी जो रहेगा अमाउंट ऑफ और टोटल एनर्जी जो रहेगा सेकंड सेक्शन पे या फिर कौन सा भी इंटरमीडिएट सेक्शन ले लो आप, वो सेक्शन पे एनर्जी जो है वो सेम रहेगा. ठीक है. अभी now we will apply the Bernoulli's equation. So what is Bernoulli's equation? It is P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. Okay, so this is our Bernoulli's equation. And what is happening in this case, so at section 1 there is different pressure, okay, and at section 2 there is different pressure. The two pressures P1 and P2 are different, okay. So that's why because of that we need to consider the loss of head. प्रेशर चेंज हो रहा है मतलब क्या होगा, तो हेड प्रेशर हेड जो है वो भी चेंज होगा. बराबर है. प्रेशर हेड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो प्रेशर हेड इज जनरली फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस. सो P इज इक्वल टू व्हाट इज द इक्वेशन, रो जी एच. ओके, सो अगर से हेड प्रेशर चेंज हो रहा है P, तो ऑब्वियस चीज है कि H भी चेंज होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज रो एंड जी आर द कांस्टेंट टर्म्स. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से the head at this point and head at this point is different. Okay, and that loss of head that we are taking on the second side. Okay, here हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो loss of head है उसको हम calculate कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, so this is our extra term adding into the Bernoulli's equation, और हमें ये extra term जो है वो ही find out करना है. ठीक है. नाउ देखो डाटम जो है अपना डाटम लाइन यहाँ पे रहेगा, वहाँ से ये जो डाटम लाइन है वहाँ से ये जो हमने जो पॉइंट सेक्शंस जो लिए है उसके जो सेंटर लाइन जो पास हो रहा है सेक्शन से उसका जो हाइट है, ओके, द हाइट इज सेम. ओके, दैट्स व्हाई Z1 इज इक्वल टू Z2. बराबर है. तो यहाँ पे ये Z1 Z2 कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, दोनों तरफ पाइप जो है हमने हॉरिजॉन्टल रखा है, तो सेक्शन 1 का हाइट डाटम लाइन से और सेक्शन 2 का भी हाइट डाटम लाइन से एक ही डिस्टेंस पे रहेगा. ठीक है, तो उस वजह से Z1 एंड Z2 विल कैंसिल आउट. नाउ वी नो दैट द पाइप इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. अब डायग्राम में देख सकते हो तो पाइप जो है हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लिया है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 विल बिकम इक्वल टू A2. बराबर है. A1 इज इक्वल टू A2 क्यू. सो बिकॉज द यूनिफॉर्मिटी इन द पाइप और इन द पाइप डायमीटर. करेक्ट, पाइप का जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म है. Z1 इज इक्वल टू Z2 सिंस द पाइप इज एट और द पाइप इज हॉरिजॉन्टली केप्ट. बराबर है. पाइप जो है हमारा पाइप हॉरिजॉन्टल रखा है हमने, उसकी वजह से Z1 एंड Z2 A1 A2 भी सेम है, Z1 Z2 भी सेम है. ठीक है, बाद में हमें पता है कि एरिया अगर से सेम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, सेम ही होगा. ठीक है, बिकॉज Q इज इक्वल टू A इंटू V. हमने ये इक्वेशन देखा है, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन. बराबर है. सो बिकॉज ऑफ दिस और यूजिंग दिस वी कैन से दैट अगर से एरिया यहाँ पे A1 सेक्शन का एरिया जो कुछ भी है उसके हिसाब से वेलोसिटी है V1. ठीक है, अभी A1 एंड A2 अगर से सेम है तो V1 V2 भी सेम ही होंगे. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट V1 इज इक्वल टू V2. ठीक है, सो ये जो टर्म है ये भी कैंसिल हो जाएगा. 2G तो कॉमन है, उसका
वो तो ऑलरेडी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैंसिल होगी। अभी बाकी क्या बचता है वो हम लिखेंगे। सो इट इज़ रिमेनिंग इज P1 बाई रो जी इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस HF, बराबर है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दिस HF, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अभी ये टर्म जो है इक्वल टू साइन के अपोजिट लेंगे हम। सो इट इज P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी आ गया। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ओके। अभी ये जो इक्वेशन है हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर से इसको एलसीएम अगर से ले लिया हमने रो जी, सो इट इज P1 माइनस P2, ठीक है। सो दिस इज HF, या फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन? सो इट इज P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी, ओके। दिस HF इज इक्वल टू frictional head loss, okay, or loss of head due to friction in the pipe, okay. Now we will find out the force at this section 1 1 and 2 2, okay. We know the pressure is P1 and P2, so according to that we can find out the, since the average velocity is constant, or average velocity of flow is constant at 1 1 section and 2 2 section, okay. So we can say that therefore net force in the direction of flow is equal to 0, ठीक है। नेट फोर्स जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अभी हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। फ्लो के डायरेक्शन में जो फ्लो फोर्स है उसको हमें फाइंड आउट करना है, और वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अभी ये देखो क्या है यहाँ पे, ये एक पाइप सेक्शन है जिसका लेंथ हमने L लिया है, ठीक है। 1 1 एंड 2 2, ये जो 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन है, उसके अंदर का जो लेंथ ऑफ पाइप है वो L है, ठीक है। नाउ द periphery or internal surface of the pipe will exert some frictional force F on the flow of water. जो कुछ भी पानी ये पाइप से के अंदर से फ्लो हो रहा है उसको अपोज करने के लिए एक फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज आवर फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्यों आता है? तो बिकॉज ऑफ द इरेग्युलरिटीज इनसाइड द पाइप, ओके। पाइप जो कुछ भी है उसके अंदर का सरफेस अगर से रफ है, ठीक है, या फिर ऑपरेशंस बहुत सारे दिनों बाद क्या होता है कि इंटरनल सरफेस जो है उसके अंदर स्केलिंग हो जाता है। पानी जो है उसके अंदर जो मिनरल्स रहेंगे वो मिनरल्स क्या होंगे, ये पाइप के इंटरनल सरफेस पे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिपॉजिशन देयर विल बी सम फ्रिक्शन, और पाइप का जो मटेरियल है वो डिफरेंट होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि पानी जो है पास होते टाइम वो फ्रिक्शन तैयार करेगा, एक घर्षण तैयार करेगा ये पाइप के इंटरनल सरफेस के साथ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन व्हाट इज हैपनिंग, द प्रेशर हेड इज चेंजिंग एट दिस 2 sections, ओके। नाउ द नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज 0, ठीक है। ये हमें ये एक प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेट फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वो 0 दिखाना है। नेट फोर्स कैसे आएगा देखो अभी। सो दिस इज हैविंग 2 sections, सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2। ये सेक्शंस पे जो प्रेशर आ रहा है वो है प्रेशर PA, ठीक है। प्रेशर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। सो फोर्स कैसे निकालेंगे हम? सो फोर्स इज इक्वल टू, और प्रेशर इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, ठीक है। सो
अगर से फोर्स फाइंड आउट करना है तो इट विल बी P इंटू ए, ठीक है. सो इट इज P1 इंटू A1, करेक्ट, माइनस द फोर्स, सॉरी प्रेशर, सेकेंड प्रेशर और उसका रिलेटिव जो एरिया है वो इंटू, सॉरी माइनस F. ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया, बराबर है. और उसका प्रेशर एंड एरिया का अगर से हमने प्रोडक्ट लिया तो वो क्या बन जाता है, तो हमारा फोर्स बन जाएगा, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इज F1 माइनस F2 विच इज इक्वल टू F, बराबर है. सो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू F. ये F मैंने इधर ले लिया, सो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ दैट this is the equation of F. Or we can write this equation in the form of this also. F is equal to P1 A1 minus P2 A2. Okay, but here you can see area is same, that's why this is P1 minus P2 into A. Okay, and this is F. So we can take this in this fashion also. Area is remaining constant, A1 is equal to A2. यहाँ पे दिखा है हमने, यूनिफॉर्म पाइप है इसलिए एरिया कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर निकाला तो हमें ये इक्वेशन मिलता है. एंड नाउ P1 minus P2 is equal to F by A. Okay, so this is our second equation. ये इक्वेशन हमें काम में आने वाला है, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, बॉक्स में डाल देंगे. ये जो इक्वेशन है ये भी हमें काम में आने वाला इक्वेशन है, ठीक है. यहाँ पे भी P1 है, यहाँ पे भी P2, P1 माइनस P2 है, यहाँ पे भी P1 माइनस P2 है. हमें ये आगे चल के इक्वेट करना है दोनों भी, ठीक है. बट बिफोर गोइंग टू दैट वी आर हैविंग another experimental proof. So experimentally it is found that एक फ्रॉयड करके साइंटिस्ट था, ठीक है. उन्होंने क्या किया है कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ये जो फ्रिक्शन F हमने लिया है यहाँ पे, ये जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो कुछ भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ये रफ सरफेस की वजह से जो कुछ भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, उसका फॉर्मूला ये फ्रॉयड नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करके रखा है पहले से, ठीक है. उसका हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? सो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट weighted area per unit velocity multiplied by, इसको ही हम बोलेंगे F डैश, ठीक है. इट इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, ठीक है. और मल्टीप्लीकेशन में है वेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर. ओके, इतना बड़ा एक फॉर्मूला ये फ्रॉयड नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया है उसके लिए, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है. अभी वेटेड एरिया मतलब क्या है? ये जो पाइप है, पाइप का वेट मतलब क्या? गीला होने वाला जो एरिया है वो कौन सा होगा? तो ऑब्वियस है इंटरनल एरिया जो रहेगा वो वेटेड एरिया होगा, ठीक है. वेटेड एरिया मतलब क्या है कि पाइप का जो इंटरनल सरफेस है वो हमें एरिया के हिसाब से लेना है, ठीक है. अगर से पाइप को आप कट करके ऐसा स्ट्रेट करके लेंगे, ठीक है, बीच में से अगर से ये साइड आपने कट कर ली और पाइप को सीधा करके लिया, तो दैट एरिया इज आवर वेटेड एरिया. ओके, एंड दैट एरिया, सो दिस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस F, कैपिटल F से बताएंगे हम इसको. So this F is equal to F dash multiplied by pi into D into L
ओके, मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। ठीक है, ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया हमने लिखा है, ये जो है एफ डैश है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। अब ये जो वेटेड एरिया मतलब क्या बन गया, जो पेरीमीटर है, पाइप है समझो, ऐसा पाइप है तो ये हो गया उसका पेरीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय जितना भी लेंथ होगा पाइप का उतना हमें ये मल्टीप्लिकेशन में लेना है। ठीक है, सो दिस इज पाई डी इज नथिंग बट द पेरीमीटर इनटू एल, सो एल बिकम्स आवर लेंथ ऑफ द पाइप। ओके, एंड ये पूरा हो गया वेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गए हमारे या फिर इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद अभी पाई इंटू डी है, डी मतलब क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। अभी ये कैपिटल पी से डिनोट करता हूँ मैं, एल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, सॉरी। ठीक है, सो दिस इज एफ इज इक्वल टू एफ डैश पी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, और यही एफ हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया एफ, तो उसके लिए ये डेरिवेशन है। ठीक है, सो दिस एफ इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द पाइप। ओके, और इंटरनल एरिया ऑफ द पाइप, उसके लिए हमने ये एफ लिया। सो ये टोटल रिजल्टेंट जो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया F1 यहाँ पे आएगा फोर्स, F2 आएगा यहाँ पे, और F जो होगा इसके अपोजिट में है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम इसको F ले रहे हैं। ठीक है, और सब रिजल्टेंट जो है ये तीनों का अगर से हमने रिजल्टेंट लिया तो वो जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वो हिसाब से हमने ये सब किया है। नाउ वी कैन equate the equations. Okay, so this is f and this is again f by a हमने जो लिया है यहाँ पे। so ये दो इक्वेशंस हम इक्वेट अगर से कर लिए, ठीक है, f की फॉर्म में अगर से ये इक्वेशन लिखा मैंने, अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये इक्वेशन पहले। so this second equation, what is our second equation? so this is f by a is equal to p1 minus p2। ये जो है स्मॉल p1 p2 है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा। और f इज इक्वल टू f डैश पी एल इंटू वी स्क्वायर। ये जो है कैपिटल P है और ये जो है स्मॉल p है। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ वी वांट टू equate these two equations. so before that अगर से ये a इधर आ गया तो यहाँ पे आएगा। so ये हो गया इक्वेशन हमारा f का। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जो है, दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, उसकी वजह से राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो वी कैन राइट p1 माइनस p2 इंटू a इज इक्वल टू f डैश कैपिटल P L V स्क्वायर। ठीक है, सो p1 माइनस p2 इज इक्वल टू क्या होगा इक्वेशन, सो इट इज f डैश पी एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल A। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 1 आर सेम और इट्स LHS आर सेम। ओके, LHS आर equal, we can write। okay, so equating that 1 and 2, so यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, HF लिया है हमने, so P1 माइनस P2 है, यहाँ पे भी P1 माइनस P2 है। ठीक है, so ये इक्वेशन नंबर 1 कैसे आएगा देखो, so it is P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू HF बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2। Now equating these two equations because of their left hand sides are equal, so this is f dash p l v square divided by a आ गया। so ये हमारा इक्वेशन हो गया। हमें HF फाइंड आउट करना है, so HF इज इक्वल टू f डैश
PLV² डिवाइडेड बाय ये रो जी अगर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू साइन के अपोजिट आने के बाद डिवाइड में जाएंगे वो, ठीक है। सो ये आ गया हमारा इक्वेशन, ओके। अभी इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो। सो इट इज एफ डैश डिवाइडेड बाय रो जी इंटू पी डिवाइडेड बाय ए। नाउ दिस पी इज आवर पेरीमीटर ऑफ द पाइप, ओके, इंटू एल इंटू V², ठीक है। हमने इसको सेपरेट करके लिखा है, क्यों लिखा है तो हमें ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस P अपॉन A इज इक्वल टू क्या होगा, अभी पेरीमीटर इज पाई डी, बराबर है, और एरिया ऑफ द पाइप हैविंग डायमीटर स्मॉल डी, सो इट इज पाई r स्क्वायर, ओके। एंड इन द टर्म्स ऑफ डायमीटर वी कैन राइट पाई बाय 4 डी स्क्वायर, बराबर है। अब ये जो 4 है वो ऊपर जाने के बाद कैसा दिखेगा, सो इट इज पाई कैंसिल हो गया, ये एक डी और ये एक डी कैंसिल हो गया, सो इट इज 4 डिवाइडेड बाई डी, ओके। सो दिस इज आवर P divided by A, perimeter divided by area becomes 4 divided by D, okay. Now we will put this bracket, instead of this bracket we will put this, okay. And here another term is introduced, and that term is F dash divided by rho is equal to स्मॉल f बाई 2, ओके। सो ये एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। यहाँ पे वेयर दिस स्मॉल f इज नथिंग बट इट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अभी ये एक इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों जो है यहाँ पे f डैश डिवाइडेड बाय रो एंड p डिवाइडेड बाय a, ये दो टर्म्स निकाल के हमें ये नए जो टर्म्स आए हैं वो डालने हैं यहाँ। सो व्हाट विल आवर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर, लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर एज 5, ओके। सो आवर 5 नंबर इक्वेशन बिकम्स, सो दिस इज HF विच इज इक्वल टू, अभी क्या बनेगा, f डैश डिवाइड बाय रो मतलब आएगा हमारा ये, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय p डिवाइडेड बाय, अभी ये g एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। p बाय a मतलब आएगा 4 डिवाइडेड बाय d मल्टीप्लाइड बाय l इंटू V², करेक्ट। अभी ये सब चीजें हैं, अभी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें लिखना है, सो इट बिकम्स 4FLV² डिवाइडेड बाय 2GD, ओके। सो दिस इज द डार्सीज इक्वेशन टू फाइंड आउट द फ्रिक्शनल लॉस, ओके। और दिस इक्वेशन इज नोन एज डार्सीज वेसबैक इक्वेशन फॉर फ्रिक्शनल लॉस, ओके। अगर से आपको बोला है कि फ्रिक्शनल लॉस फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ डार्सीज एंड वेसबैक इक्वेशन, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो दिस इक्वेशन नंबर 6 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखो अभी कैसा लिखेंगे इसको। So this is HF is equal to FLV² divided by 2GD, okay, and where the small f is known as friction factor. कुछ नहीं, इन्होंने क्या किया है, ये जो 4 है 4 मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था स्मॉल f, उसको ही हमने, इसको ही क्या किया इन लोगों ने कि मॉडिफाई करके स्मॉल f को बोला है फ्रिक्शन फैक्टर। सो स्मॉल f इज इक्वल टू व्हाट इज, सो इट इज 4 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो ऐसे ही इन्होंने इसको मॉडिफाई करके लिखा है, ठीक है।
और अब हम इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू और q इज इक्वल टू a इंटू वी. बराबर है, हमें पता है q क्या है. सो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. ओके, नाउ दिस टर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ सकता है, q डिवाइडेड बाय a. Okay, now putting instead of this v, if we put q divided by a in this equation, so what happens? So hf is equal to fl divided by 2gd multiplied by, अभी v जो है उसकी जगह पे हम लिखेंगे q by a and its square. ठीक है, स्क्वायर करने के बाद देखो एफ एल एज इट इज रह गया, क्यू स्क्वायर एज इट इज रह गया, 2gd as it is रख दिया. Now A is nothing but area of the pipe. How much is the area of the pipe? It is pi by 4 d square and again its square. So this bracketed term is nothing but our area. Okay, and here q by a square means it is q square divided by a square. ठीक है, so ये q square अलग लिखा हमने और ये जो a था डिनोमिनेटर वाला उसको और एक बार हमें स्क्वायर करना पड़ेगा. सो एच एफ बिकम्स एफ एल क्यू स्क्वायर multiplied by, now this 4 into 4 is, sorry, 4 raised to 4 square becomes, it becomes 16. 4 4 the 16. सो ये ऊपर डाल दिया हमने. ठीक है, डिनोमिनेटर में आ रहा था, उसको ऊपर जाने के बाद वो न्यूमरेटर में जाएगा. सो इट इज 2g. नाउ दिस पाई स्क्वायर इज देयर. ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर पहले का, उसके बाद ये डी स्क्वायर अगेन, दोनों का एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे जो डी था वो एज इट इज हमने लिख दिया है यहाँ पे. ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग ऑल दिस एच एफ बिकम्स, सो इट इज एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.1 into d raised to 5. ओके, ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं हम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके हम ये इक्वेशंस को डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, सो ये हो गया हमारा डार्सीज एंड वेशबैक इक्वेशन. यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द हेड लॉस in the pipe. Okay, so thank you very much for watching this video. If you have any doubts you can ask me in the comment box. Don't forget to like and subscribe my channel and videos and hit the bell icon you can see near the subscribe button. Okay, thank you very much.